پاکستان چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا 7واں اجلاس، نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور وزیر خارجہ وانگ جی نے مشترکہ صدارت کی۔ پاکستان چین تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ، تجارت، کثیر الجہتی تعاون، عوامی روابط سمیت اقتصادی راہداری پر تبادلہ خیال، دو طرفہ اور کثیر الجہتی فورمز پر تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستان چین تعلقات کی 75ویں سالگرہ شایان شان طریقے سے منانے کا اعلان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بیجنگ میں چین کے ایگزیکٹو نائب وزیر اعظم ڈینگ ڈو یانگ سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور اقتصادی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ پاکستان چین تصویراتی شراکت داری کو فروغ دینے پر اتفاق۔ ایگزیکٹو نائب وزیر اعظم کی بنیادی قومی مفادات پر پاکستان کی حمایت کی تعریف۔ سی پیک کے تحت تعاون بڑھانے اور مستقبل کے ویژن کو عملی جامہ پہنانے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے بیجنگ میں چین کی کمیونسٹ پارٹی کے عالمی محکمے کے وزیر لیو ہائزنگ سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات، سی پیک کے تحت جاری منصوبوں اور خطے میں ہونے والی پیش رفت پر اظہار اطمینان، پارٹی سطح پر روابط، علاقائی امور اور سی پیک کے مختلف منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی مصر اور ملائیشیا کے وزرائے خارجہ اور بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ ایشیا اور مشرق وسطیٰ کی حالیہ پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال، قریبی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ بصارت سے محروم افراد کے رسم الخط بریل کا عالمی دن، صدر مملکت کا بینائی سے محروم افراد کے وقار، قومی زندگی میں بھرپور شمولیت کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان کی بنیاد مساوات، سماجی انصاف اور انسانی وقار کے احترام کے اصول پر رکھی گئی۔ بریل خواندگی کے فروغ، جدید ٹیکنالوجیز کے استعمال کے لیے پرعزم ہیں، صدر آصف علی زرداری۔ سروس ڈیلیوری میں بہتری اور گڈ گورننس کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا قابل تحسین اقدام۔ گڈ گورننس کا نیا ماڈل متعارف، وزیر اعلیٰ مریم نواز صوبے میں سرکاری اداروں کی مانیٹرنگ کر رہی ہیں۔ عوام کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے سی ایم انسپیکشن ٹیموں کی اسپتالوں میں چیکنگ، مریضوں کو مفت ادویات اور سہولیات کی فراہمی میں کوتاہی کی فوری نشاندہی۔ عوام کی شکایت پر متعدد ایم ایس اور پرنسپل کو تبدیل کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایف آئی اے کراچی زون کا دورہ، معصوم لوگوں کو ملازمت کا جھانسا دے کر بیرون ملک بھجوانے والے رعایت کے مستحق نہیں، حوالہ ہنڈی کاروبار کسی صورت برداشت نہیں، بلا امتیاز ایکشن نظر آنا چاہیے، منی لانڈرنگ اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث مافیا کے خلاف بھی مؤثر کارروائی کی جائے، وزیر داخلہ محسن نقوی۔ بین الاقوامی مسافروں کے لیے خوشخبری، بین الاقوامی مسافروں کے لیے تمام زونل دفاتر میں پری ڈپارچر فیسیلیٹیشن ڈیسک قائم، مسافروں کو امیگریشن کے طریقہ کار اور کلیئرنس سے متعلق رہنمائی اور معاونت حاصل ہوگی، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی۔ عوام نے جھوٹی تبدیلی کے دعوے داروں کو مسترد کر دیا، ملک دشمن عناصر پاکستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتے، پاکستان ہے تو سیاست ہے، ملکی سالمیت ہر معاملے پر مقدم ہونی چاہیے، مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی، پاکستان اب تیزی سے ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، وفاقی وزیر امیر مقام کی ملکنڈ میں نادرا سینٹر کے افتتاح کے موقع پر گفتگو۔ شہروں اور دیہات کی ترقی یکساں ترجیح، حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں، بلا تفریق عوام کی خدمت کرنے پر یقین رکھتے ہیں، فیصل آباد میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھایا جا رہا ہے، ملک دشمن عناصر سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، قانون ہاتھ میں لینے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، سینیٹر رانا ثناء اللہ۔ لکی مروت میں فتنۃ الخوارج کے بزدلانہ حملے میں شہید ٹریفک پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، پولیس اور ضلع انتظامیہ کے افسران، شہداء کے اہل خانہ، معززین علاقہ اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک، صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی خارج کے حملے کی مذمت، شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت، شہداء کی قربانیوں کو سلام، پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا۔
भारत को आलमी सतह पर एक बार फिर शदीद सुबकी का सामना। भारतीय एविएशन की नाअहली और गैर पेशावराना तर्ज अमल आलमी सतह पर बेनकाब। पै दर पै फजाई हादसात के बाद एक और एयर इंडिया का पायलट नशे की हालत में कनाडा में गिरफ्तार। कनाडा के ट्रांसपोर्ट रेगुलेटर का एयर इंडिया से तहकीकात का मुतालबा। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कल यौम हक़ खुद इरादियत मनाएंगे। बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक जदोजहद जारी रखने के आज़म की तजदीद करेंगे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कल सेमिनार्स, रैलियों और एहतजाजी मुजाहिरों की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद से भारत के मुसलसल इनकार ने तनाज़ कश्मीर को जनूबी एशिया में एटमी फ्लैश पॉइंट बना दिया। काबिज़ भारतीय हुकाम ने जिला कठुआ में मज़ीद 7 कश्मीरियों की जायदादें जब्त कर ली। दहशत गर्दों की हुकूमती सरपरस्ती के बाद तालिबान रजीम के इंसानियत सोच जराइम का भी पर्दाचाक। अफगान जरीदे हश्ते सुबह 2025 के दौरान साबिक फौजी एहलकारों को मुनज़्ज़म अंदाज में निशाना बनाने का इंकशाफ। 123 साबिक फौजी एहलकार कत्ल, 131 को गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना भी बनाया। तालिबान रजीम की जानिब से बेशतर गिरफ्तारियां बगैर किसी अदालती वारंट के की गईं। सफाक तालिबान रजीम का जाबराना रवैया खित्ते के साथ अफगानिस्तान के लिए भी खतरात का बाइस बन चुका है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में तामीर नौ के लिए 2002 से 2021 तक 144.7 अरब डॉलर्स मुख्तस किए। मुख्तस रकम में से 137.3 अरब डॉलर्स तामीर नौ पर खर्च किए गए। ये अखराजात दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप के मार्शल प्लान से भी ज्यादा रहे। अमरीकी इनखला के बाद अफगान हुकूमतों की करप्शन तामीर नौ में सबसे बड़ी रुकावट साबित हुई। 20 साल अफगान जंग और तामीर नौ के बारे में खुसूसी अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल की रिपोर्ट जारी। अमेरिका ने अफगान फोर्सेस के लिए 1,47,000 गाड़ियां और हजारों अस्करी आलात खरीदे। 4,27,300 हथियार और 162 तैयारे फराहम किए गए। इनकला के बाद 7.1 अरब डॉलर मालियत का अस्करी साजो सामान अफगानिस्तान में ही छोड़ा गया। अफगान सिक्योरिटी इदारों में हजारों घोस्ट मुलाजमीन मौजूद रहे। अफगान फोर्सेस के लिए मुख्तस ईंधन बड़े पैमाने पर चोरी होता रहा। खुसूसी अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल की रिपोर्ट। अमेरिका की जानिब से वेनेजुएला पर हमले के बाद गिरफ्तार सदर निकोलस मादुरो को आज न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा। मादुरो पर मनशियात और तबाहकुन हथियार रखने का इल्जाम है। अमरीकी फौज ने मेरी हिदायत पर ताकत का गैर मामूली और शानदार मुजाहरा किया। मादुरो और उनकी अहलिया को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। वेनेजुएला के इंतजामी उमूर इक़्तिदार की मुंतकिली तक अमरीका चलाएगा। अमरीकी तेल की कंपनियां अब वेनेजुएला जाएंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नायब सदर डेल्सी ने वेनेजुएला का इक़्तिदार संभाल लिया। किसी मुल्क की कॉलोनी ना बनने का ऐलान। अदालत उस्मा ने नायब सदर डेल्सी को आर्जी तौर पर ओहदा संभालने का हुक्म दिया था। डेल्सी की मुल्क में मुसल्लह जारहियत की मजम्मत। मुल्की दिफाई काउंसिल को फाल कर दिया गया है। यहाँ वाज़ेह हुकूमती निज़ाम मौजूद है। वेनेजुएला बावकार और कानूनी मुकालमे के लिए तैयार है। वेनेजुएला की नायब सदर का सरकारी टेलीविजन पर खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा का वेनेजुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई पर इजहार तशवीश। अमरीका बैनुल अक़वामी कानून का एहतराम करे। हमले के खत्ते पर तशवीशनाक असरात मुरतब हो सकते हैं। फौजी कार्रवाइयाँ खतरनाक नज़ीर कायम करती हैं। फरीकैन आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का मुकम्मल एहतराम करें। जामे और बामकसद मुज़ाकरात से बहरान का पुरअमन हल निकाला जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस। वेनेजुएला की सूरत हाल पर गौर के लिए सलामती काउंसिल का इजलास कल तलब। वेनेजुएला की सूरत हाल पर गौर होगा। कोलंबिया की दरखास्त पर 15 रुकनी काउंसिल का इजलास तलब किया गया। रूस और चीन की भी दरखास्त की हिमायत। अमरीकी फौजी कार्रवाई पर आलमी बिरादरी में शदीद तशवीश। रूस, ब्राजील, चीन, फ्रांस, क्यूबा और ईरान की तरफ से अमरीकी हमले की मजम्मत। वेनेजुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई पर दुनिया सरापा एहतजाज। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। अमरीकी सदर के खिलाफ नारे। वेनेजुएला के खिलाफ जंग नहीं के बैनर्स भी लहराए गए। न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर में भी एहतजाजी रैली। सदर ट्रंप की गिरफ्तारी का मुतालबा। पेरिस, एथेंस, रोम, अर्जेंटीना और कोलंबिया में भी अमरीकी हमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे।
गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्तोर के बालाई इलाकों में निमर, तुमरी, प्रेशंग और रट्टू समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। शिगर समेत बल्तिस्तान में भी बर्फबारी। गिलगित शहर और मज़ाफात में मतला अबर आलूद, पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। खेल या सियासत, भारतीय रवैये पर बांग्लादेश का सख्त रद्द-ए-अमल। पीसीबी ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत न भेजने का ऐलान कर दिया। फैसला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हंगामी इजलास में किया गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फैसले से आईसीसी को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। फैसला भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जारहाना और फिरका वाराना पॉलिसियों के तनाजुर में किया गया। बांग्लादेश के मुशीर बराए खेल का बयान। Lovely. There you go, Scott Boland. Football and tennis. Glorious, Joe Root. सिडनी में एशेज सीरीज का 5वां टेस्ट, पहले रोज इंग्लैंड ने 3 विकेटों पर 211 रन बना लिए। बारिश के बाद सिर्फ 45 ओवर्स का खेल मुमकिन हो सका। हैरी ब्रूक 78 और जॉय रूट 72 रन पर नॉट आउट। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 3-1 की फैसला कुन बढ़तरी। एशेज सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। Into Joe Root's strength. Rogers slog sweep. Fraser McGurk's got another one. McDonald edges, he's gone. Is that story? That's a very good shot. Cartwright wants और बिग बैश क्रिकेट लीग मेलबर्न रेनिगेट्स ने मेलबर्न स्टार्स को 4 विकेटों से हरा दिया। रेनिगेट्स ने 174 रन का हदफ आखिरी ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। ओपनर जोश ब्राउन ने 48 गेंदों पर 84 रन की इनिंग्स खेली। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। a look of cynicism if ever अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन पर मैं हूं काशिफ रजा। मैं हूं सलमा कौसर। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। इंसाफ और मसावात मेरे रहनुमा उसूल हैं और मुझे यकीन है कि आपकी हिमायत और ताउन से इन उसूलों पर अमल पैरा होकर हम पाकिस्तान को दुनिया की सबसे अजीम कौम बना सकते हैं। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी की दावत पर बीजिंग में पाकिस्तान चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत की है। इजलास में पाकिस्तान चीन दोस्ती को मजीद गहरा करने के अज़्म का इयादा किया गया। तफसील बता रहे हैं हुसैन रजा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी के हमरा पाकिस्तान चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत की। इजलास में अहम इलाकाई और आलमी अमूर समेत पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। तजारत, कसीर अलजहती ताउन, अवामी रवाबित समेत पाकिस्तान चीन इक्तसादी राहदारी पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान हमा मौसमी शराकतदारी की अहमियत को उजागर करते हुए पाक चीन दोस्ती को इलाकाई खुशहाली और अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम करार दिया। दोनों मुल्कों के रहनुमाओं ने दो तरफा और कसीर अलजहती फोरम्स पर ताउन बढ़ाने और पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह को शायान शान तरीके से मनाने पर इत्तेफाक किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने चीन के वज़ीर ख़ारजा के हमरा पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के लोगों की रूनमाई की।
دونوں ملکوں کے تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر پورا سال تقریبات منائی جائیں گی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے وزیر خارجہ وانگ جی کے ہمراہ پاکستان چین دوستی کے 75 سالوں پر مبنی تصویری نمائش کا جائزہ بھی لیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی چین کے ایگزیکٹو نائب وزیر اعظم ڈنگ شو شیانگ سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور اقتصادی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایگزیکٹو نائب وزیر اعظم کی جانب سے بنیادی قومی مفادات پر پاکستان کی مسلسل حمایت کی تعریف کی گئی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے چین کی کمیونسٹ پارٹی کے عالمی محکمہ کے لیے وزیر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر پارٹی سطح پر روابط، علاقائی امور اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کے مختلف منصوبوں پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ حسین رضا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور بنگلہ دیش کے خارجہ امور کے مشیر توحید حسین کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کے مطابق دونوں رہنماؤں نے پاکستان بنگلہ دیش تعلقات کا جائزہ لیا اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے عزم کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایشیا اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا اور قریبی روابط میں رہنے پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور ملائیشیا کے وزیر خارجہ محمد بن حاجی حسن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ اس موقع پر پاکستان اور ملائیشیا کے دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ فریقین نے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنما نے ایشیا اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے قریبی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور مصر کے وزیر خارجہ بدر احمد محمد عبدالعاطی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے موجودہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل کے حل کے لیے فریقین کی کاوش کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون اور روابط کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ فتنۃ الخوارج کے بزدلانہ حملے میں شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ لکی مروت میں ادا کر دی گئی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے شہداء کو سلامی پیش کی اور پھول رکھے۔ شہداء کے بلند درجات کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ پولیس، ضلعی انتظامیہ کے افسران، شہداء کے اہل خانہ، معززین علاقہ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے لکی مروت میں فائرنگ کے واقعے میں شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر مملکت نے لکی مروت اور بنوں میں شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہوئے شہداء کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ صدر مملکت نے کہا کہ امن و امان کے قیام کے لیے پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی خدمات اور قربانیاں قابل فخر ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ضلع لکی مروت میں فائرنگ کے واقعے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے واقعے میں شہید پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ امن و امان کے لیے پولیس نے ہمیشہ راول دستے کا کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ منی لانڈرنگ میں ملوث مافیا کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا جائے۔ اس مکروہ دھندے میں ملوث عناصر کی پوری منی ٹریل کو بے نقاب کیا جائے۔ شہر قائد میں ایف آئی اے کراچی زون کے خصوصی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ بڑے منی لانڈررز پر مضبوط ہاتھ ڈالا جائے۔ حوالہ ہنڈی کا کاروبار کسی صورت برداشت نہیں، بلا امتیاز ایکشن نظر آنا چاہیے۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایجنٹس مافیا کے خلاف مؤثر کارروائی کا حکم دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معصوم افراد کو ملازمت کا جھانسا دے کر بیرون ممالک بھیجنے والے عناصر کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جعلی ادویات کا کاروبار کرنے والے انسانی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ ملوث عناصر کو قانون کی گرفت میں لایا جائے۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے کراچی زون نے بریفنگ میں بتایا کہ 4 ماہ میں انسانی اسمگلنگ میں ملوث 20 ایجنٹس کو گرفتار، جبکہ 14 کروڑ روپے کی نان کسٹم مصنوعات اور منشیات کو ضبط کیا گیا۔ مسافروں کی سہولت کے لیے کراچی ایئرپورٹ پر سہولت سینٹر قائم کر دیا گیا ہے۔ مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ خان نے فیصل آباد میں عوامی اجتماع سے خطاب میں کہا ہے کہ نفرت، الزام تراشی اور جھوٹے مقدمات کی سیاست نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت اپنے 4 سالہ دور میں عوام کو کوئی قابل ذکر ترقیاتی منصوبے نہ دے سکی۔ رپورٹ کر رہے ہیں حافظ محمد علی عابد۔ وزیر اعظم کے سیاسی امور کے مشیر رانا ثناء اللہ خان نے چک نمبر 30 جیم بے میں سوئی گیس کی فراہمی اور چک نمبر 28 جیم بے تک نئی سڑک کا افتتاح کیا۔ انہوں نے ساندل بار تھانے کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔
इस मौका पर अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नफरत, इल्जाम तराशी और झूठे मुकदमात की सियासत ने मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। उन्होंने कहा कि PTI के 4 साल दौर में अवाम को कोई नुमाया तरक्याती मंसूबा नहीं मिला और मुल्क को सिर्फ इंतकामी सियासत का सामना रहा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत और पायदार तरक्की पर यकीन रखती है और वोट की बुनियाद पर शहरियों में कोई फर्क नहीं किया जाता। मरकजी हुकूमत जो है वो मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में जो है वो ला रही है, लेकिन दूसरी तरफ 4 साल कोई मंसूबा बता दें, आप अपने हलके में बता दें, आप फैसलाबाद में बता दें, पाकिस्तान की चलो बात दूर की बात है, लेकिन है पाकिस्तान में भी कोई नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि देही इलाकों में सड़कों, गैस और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी मुस्लिम लीग नून के अवाम दोस्त विजन का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन है और हुकूमत सरमायाकारी के फ़रोग़ और अवाम को रिलीफ देने के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है। पाकिस्तान में कारोबार भी चल रहे हैं, मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं, हम जो है वो डिफ़ॉल्ट की पोजीशन से आगे निकल चुके हैं और आने वाला जो बजट है उसमें अवाम के लिए बहुत बेहतर रिलीफ से मुतल्लक जो है वो वज़ीर आज़म साहब जो है वो उन्होंने अभी से जो है वो कोशिश शुरू की है। तकरीब से मेंबर सूबाई असम्बली ज़फ़र इकबाल नागरा, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं मियां अजमल आसिफ और मियां ज़ियाउर रहमान समेत दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में सियासी फ़ज़ा बदलने लगी, अवाम ने सच और झूठ में फ़र्क करना शुरू कर दिया है। तफसील जानते हैं मोहम्मद सजाद की रिपोर्ट में। बटखेला मलकड़ में जलसे से खिताब करते हुए वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान और सिफरान इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा कि सूबे के हस्पतालों में अद्वियात नापैद हैं, जामियात मसाइल का शिकार है और NFC के वसाइल अवामी फलाह की बजाय मनफी सियासत पर खर्च किए जा रहे हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि सियासत बाद में, पाकिस्तान सबसे पहले है। वफाकी वजीर ने साल 2025 में पाकिस्तान की दिफाई और सिफारती कामयाबियों को सराहते हुए अफवाज पाकिस्तान और कौमी क़यादत को खिराजी तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि ये कामयाबियां पूरी कौम की हैं, जिस पर अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ। 2025 एक कामयाबियों का साल रहा, ख्वाह माशी मैदान में हो, ख्वाह दिफाई मैदान में हो, ख्वाह डिप्लोमेटिक महाज पर हो, अल्लाह ताला की फजल करम से जो कामयाबी आपको हुए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। साथ साथ में नए साल की जो 2026 शुरू है, आज जिसका 4 तारीख है, उसके लिए भी आप सबको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ और हम सारे दुआ गोए कि अल्लाह ताला की फजल करम हो तो वही हमारे जो लीडरशिप है शहबाज शरीफ साहब की शक्ल में और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की शक्ल में अपने फील्ड में इंशाअल्लाह ताला 2026 हम इस इंतजार में कि मजीद कामयाबियों का साल नाफिज होगा। इंजीनियर अमीर मुकाम ने खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि 13 साल में तालीम, सेहत और रोजगार के शोबों को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि नौजवान बासलाहियत है मगर सूबे में कारकर्दगी का फुकदान है। उसके सेहत के साथ, उसके तालीम के साथ, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, उसके दूसरे जवानों के लिए जो काम हो रहा है, काश्तकारों जमींदारों के लिए जो काम हो रहा है, आपको उससे भी थोड़ा नकल कर लेना चाहिए था कि वो ले आए और सूबे की आवाम के लिए वही से स्टार्ट ले ले और शुरू करे। इससे कबल वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान व सिफरान इंजीनियर अमीर मुकाम ने तोतकान बटखेला में नादरा सेंटर का इफ्तिताह किया। मोहम्मद सजाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी 5 जनवरी का दिन यौम हक़ खुद इरादियत के तौर पर मनाते हैं। इस दिन की तारीखी अहमियत और पस मंजर के बारे में बता रहे हैं अदील अहमद खान अपनी रिपोर्ट में। भारत ने 27 अक्टूबर 1947 को तकसीम बरसगीर पाक व हिंद के तमाम तर उसूलों और ज़ाब्तों को बालाए ताक रखते हुए श्रीनगर में अपनी फ़ौजें उतारी और कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर गैर कानूनी, गैर अखलाकी और नाजायज़ तसल्लुत जमा लिया। हालांकि तकसीम हिंद के फार्मूले के मुताबिक और फितरी तौर पर भी कश्मीर का इल्हाक पाकिस्तान के साथ बनता था।
पाकिस्तान और भारत के माबैन मसला कश्मीर जब संगीन सूरत हाल अख्तियार कर गया तो भारत खुद ये मसला लेकर अक़वाम मुत्तहिदा गया, जहाँ 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरी अवाम को ये हक़ दिया था कि वो पाकिस्तान या भारत के साथ अपने इल्हाक़ का तयन खुद करें। भारत ने भी इस करारदाद पर अमल दरामद का वादा किया था, मगर उसका ये वादा आज तक वफा न हो सका। इसके अलावा भी तकरीबन 16 करारदादें सलामती कौंसिल में मुख्तलिफ अवकात में पास की गई हैं, जिसमें यही फैसला हुआ था कि कश्मीर के लोगों को राय शुमारी का मौका दिया जाएगा। लेकिन देखिए, भारत जहां अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से इनराफ कर रहा है, उनसे इनकारी है, वहीं वो इस मसले को हल करने के बजाय कश्मीर के लोगों के ऊपर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ रहा है। भारत मसलसल इस वादे की पासदारी के खिलाफ मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम पे जुल्म डाल रहा है, जबर डाल रहा है और जबरी कब्जा जमाए हुआ है। 10 लाख फौज के जरिए से मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की जिंदगी अजरन का रखी है। भारत गुज़िश्ता 7 दहाइयों से ज़ायद अरसा से न सिर्फ कश्मीर पर गैर कानूनी और गैर अखलाकी तसल्लुत जमाए बैठा है, बल्कि कश्मीरियों की आबादियाती शिनाख्त मिटाने के दर पे भी है। खुसूसन 5 अगस्त 2019 के बाद हिंदुस्तान ने रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख, जगराफिया, सियासी हसीयत ख़त्म करने के लिए बड़ी कोशिशें की हैं, लेकिन कश्मीरी अवाम इस अज़म और इस्तिक़लाल के साथ लड़ रही है कि उनके पास वो हक है जो हक अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूर शुदा है। इस हक खुदारादियत को इसको दबाने के लिए भारत ने अपनी फौजों में इजाफा करके मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम, नहते अवाम के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े, नौजवानों को इनकाउंटर में शहीद किया। इसने तार तार की। हर साल कश्मीरी अवाम 5 जनवरी का दिन यौम हक़ खुद इरादियत के तौर पर मनाते हैं और जलसे जुलूसों, रैलियों और सेमिनार्स का इनेकाद करके अक़वाम मुत्तहिदा को याद दहानी करवाते हैं कि वो मसला कश्मीर के मुतालिक अपनी ही करारदादों की रोशनी में कश्मीरियों को उनका पैदाइशी हक़ खुद इरादियत देने के लिए अपना किरदार अदा करे। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कल यौम हक़ खुद इरादियत मनाएंगे और अपने इस अज़्म की तजदीद करेंगे कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा अपने नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। KMS के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने 5 जनवरी 1949 को एक तारीखी करारदाद पास की थी, जिसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के भारत या पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ का फैसला आलमी इदारे की ज़ेर निगरानी एक आज़ादाना और गैर जानिबदाना रायशुमारी के जरिए किया जाएगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय कब्जे के तहत कश्मीरियों को दरपेश सियासी जबर और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को उजागर करने के लिए कल एहतजाजी मुजाहिरों, रैलियों और सेमिनार्स की अपील की है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में जारी एक बयान में खबरदार किया कि भारत की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद से मुसलसल इनकार ने तनाज़ कश्मीर को जनूबी एशिया में एक एटमी फ्लैश पॉइंट बना दिया। भारतीय हुकाम ने जिला कठुआ में मजीद 7 कश्मीरियों की जायदादें जब्त कर ली हैं। ये इक़दाम 5 अगस्त 2019 को दफ़ा 370 और 35 की मनसूखी के बाद कश्मीरियों की जायज़ सियासी उमंगों को दबाने की एक मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है। और वेनेजुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई के बाद सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क मुंतकिल कर दिया गया है। वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर की अमरीकी बोइंग 757 तैयारे के जरिए न्यूयॉर्क मुंतकिली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक निकोलस मादुरो को हेलीकॉप्टर में मैनहट्टन पहुंचाया गया, जहां उन्हें ब्रुकलिन हिरासती मराकज में रखा गया है। मादुरो को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा। उन पर मनशियात और दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत मुकदमा चलेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में इक़्तिदार की मुंतकली तक वहां के मामलात खुद चलाने का ऐलान किया है। फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोई भी कौम अमेरिका की तरह ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकती। मेरी हिदायत पर फौज ने कामयाबी से कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि निकोलस को अहलिया के हमरा गिरफ्तार किया गया है। निकोलस को न्यूयॉर्क में अदालत का सामना करना होगा। अमरीकी सदर ने कहा कि वेनेजुएला की अवाम आज़ाद और खुद मुख्तार हैं। हम वेनेजुएला के अवाम की बेहतरी चाहते हैं, वहाँ के अवाम पर किसी को जुल्म नहीं करने देंगे। ट्रंप ने कहा कि हम अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, हर तरह से अमरीका को महफूज बनाएंगे। उन्होंने कहा कि अमरीकी ऑयल कंपनियां वेनेजुएला के तेल के बड़े ज़खायर से फ़ायदा उठाएंगी, अरबों डॉलर लगाकर वेनेजुएला का तबाहशुदा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि वेनेजुएला में ऑपरेशन का मकसद डिक्टेटर मादुरो को इंसाफ के कटहरे में लाना है। जो अमरीकी सलामती के खिलाफ इकदाम करते हैं वो ये ऑपरेशन देख लें। डोनाल्ड ट्रंप ने इल्जाम आयद किया कि वेनेजुएला तेल की आमदन मनशियात और दहशतगर्दी के इस्तेमाल कर रहा है। अमरीका के पास वेनेजुएला के सदर के खिलाफ जराइम के शवाहिद मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने वेनेजुएला में अमरीका की फौजी कार्रवाई पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है। सेक्रेटरी जनरल ने खबरदार किया है कि हमले के खित्ते पर तशवीशनाक असरात मुरतब हो सकते हैं।
इस नोयत की फौजी कार्रवाइयाँ एक खतरनाक नज़ीर कायम करती हैं। सेक्रेटरी जनरल ने इस बात पर जोर दिया कि तमाम फरीकैन बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का मुकम्मल एहतराम करें। उन्होंने कहा कि फौजी कार्रवाई में बैनुल-अक़वामी क़वानीन के उसूलों के खिलाफ पासदारी नहीं की गई। उन्होंने इस सूरत हाल को आलमी कानून के लिए नुकसानदेह करार दिया। एंटोनियो गुतेरेस ने वेनेजुएला के तमाम फरीकैन पर जोर दिया कि वो इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी के मुकम्मल एहतराम के साथ जामे और बामकसद मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें ताकि बहरान का पुरअमन हल निकाला जा सके। वेनेजुएला की सूरत हाल पर गौर के लिए सलामती काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया गया है। कोलंबिया की दरखास्त पर 15 रुकनी काउंसिल का ये इजलास तलब किया गया है। रूस और चीन ने भी दरखास्त की हिमायत की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इस इक़दाम के खतरनाक मिसाल करार दिया है। वेनेजुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। अमरीकी दारकूमत वाशिंगटन में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया। व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरीन बड़ी तादाद में जमा हुए और नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन ने वेनेजुएला के खिलाफ जंग नहीं के बैनर्स भी लहराए। न्यूयॉर्क के शहर टाइम्स स्क्वायर में मुजाहिरीन ने रैली निकाली। पेरिस में मुजाहिरीन ने वेनेजुएला पर अमरीकी हमलों की मजम्मत की और वेनेजुएला के झंडे लहराए। वेनेजुएला के सदर मादुरो की गिरफ्तारी के खिलाफ यूनान की दारकूमत एथेंस में हजारों अफराद ने मार्च किया। रोम में अतालवी शहरियों ने वेनेजुएला में अमरीकी ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज किया। अर्जेंटीना और कोलंबिया में भी अमरीकी हमले के खिलाफ मुजाहरे किए गए। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सरमा की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। स्कर्दू शहर के मज़ाफ़ात के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। स्कर्दू में मौसम अब्र आलूदा होने के बायस इस्लामाबाद से स्कर्दू की दोनों परवाज़ें मनसूख हो गई हैं। ज़िला शिगर में आज अलसुबह से मुसलसल बर्फबारी हो रही है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में नुमायाँ इजाफा और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। शिगर की ज़ेर इंतज़ामिया ने तमाम मुतल्लिका महकमों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। दूसरी जानिब अस्तोर और गांचे में गुज़श्ता 3 रोज़ से वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अस्तोर शहर और बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस सर्दी में इजाफा हो गया, जबकि बालाई इलाकों का हेडक्वार्टर से ज़मीनी राबिता भी मुनक़ते हो चुका है। और महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। उधर पंजाब, ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के बेशतर अजला में धुंध छाई रही। आज कम से कम दर्जा हरारत लह -11, गोपिस, कल्लात -5, स्कर्दू, अस्तोर -4, पड़ाचनार, मालम जब्बा, हुंजा -3, कालाम, कोयटा और रावलाकोट में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दीगर शहरों में कम से कम दर्जा हरारत की तफसील: इस्लामाबाद 7, लाहौर 9, कराची 12, पेशावर 6, कोयटा -2, मुल्तान 7, गिलगित 1, स्कर्दू -4, मुजफ्फराबाद 3, श्रीनगर -3, मरी 1 और दीर में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे। मवासलात के वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने लाहौर के हल्का NA 117 का दौरा किया और पार्टी सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अब सियासत का नहीं, अवाम की खिदमत और मसाइल के हल का वक्त है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि NA 117 में तरक्याती फंड्स के इजरा पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के मशकूर हैं। हल्के में इस साल 4 गर्ल्स स्कूल बनाए गए, अगले साल मजीद 10 स्कूल बनाएंगे। हल्के में 50 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जा चुके हैं। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कारकुन अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखें, सबको साथ लेकर चलेंगे। इस मौके पर हल्का PP 145 से तरीके इंसाफ के रहनुमा जवाद ने पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में भी वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया गया। ब्रेल के आलमी दिन के बारे में लाहौर से शुमाल शबीर की रिपोर्ट देखिए। ब्रेल एक ऐसा तहरीरी निज़ाम है जो बसारत से महरूम अफराद को पढ़ने और लिखने में मदद फराहम करता है। ब्रेल का हर हर्फ उभरे हुए 6 नुक्तों पर मुश्तमिल होता है। ये नुक्ते मुख्तलिफ तरतीब में मुख्तलिफ हरूफ, आदाद और अलामात तश्कील देते हैं, जिन्हें उंगलियों के लम्स से पढ़ा जाता है। ये नुक्ते बसारत से महरूम अफराद के लिए अल्फाज बनते हैं। अल्फाज सोच में ढलते हैं और सोच उन्हें बाइख्तियार इंसान बनाने में मदद देती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लामिक स्टडीज में MA किया, और अगर ये लैंग्वेज वो इजाद ना करते
तो आज हम लोग मुस्तफ़ीद हो के यहाँ तक न पहुँच पाते। ये ब्रेल बोर्ड है, पहले हमें इसके डॉट्स याद करवाए जाते हैं, फिर उसके बाद ब्रेल बोर्ड से लिखना सिखाया जाता है। इसमें 6 डॉट्स के सेल बने हुए हैं इस पे, ठीक है। इसको हम जब बंद करते हैं तो ये इस तरह से ये नज़र आता है। इसमें ये होता है कि हर 27 लाइंस होती हैं और हर लाइन में 30 सेल्स होते हैं और हर सेल के अंदर 6 डॉट्स होते हैं। ब्रेल का रूल ये है कि हम राइट साइड से इसको लिखते हैं और लेफ्ट साइड से पढ़ते हैं। वर्ल्ड ब्रेल डे नाबीना अफराद की तालीम, खुद मुख्तारी और बावकार जिंदगी की अलामत का दिन है। फ्रांस के एक नौजवान लुइस ब्रेल ने 1824 में ये निज़ाम मुतारिफ करवाया, जो खुद भी नाबीना थे। उन्होंने दुनिया को ये पैगाम दिया कि बसारत से महरूमी कमजोरी नहीं बल्कि एक मुख्तलिफ सलाहियत का नाम है। बसारत से महरूम अफराद की जो दुनिया है, इसमें इल्म की रोशनी की जो शम्मा है वो जलाई लुई ब्रेल ने, और उसके ज़रिए हमारे पाकिस्तान के जो बसारत से महरूम तलबा पढ़ते हैं। ब्रेल बोर्ड है, ब्रेल फ्रेम है, परकर मशीन आती है इसमें, फिर ब्रेल बुक्स हैं। ब्रेल का आलमी दिन हमें ये पैगाम देता है कि दुनिया सिर्फ आंखों से ही नहीं बल्कि सोच और एहसास की निगाहों से भी देखी जा सकती है। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने कहा है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने तालीम को वक्त, फासले और हालात की कैद से आज़ाद किया। कराची में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के सालाना कॉन्वोकेशन की तकरीब का अहवाल हसन नासिर सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब करते हुए सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने तालीम को वक्त, फासले और हालात की कैद से आज़ाद किया। ओपन यूनिवर्सिटी ने अपनी 50 साल तारीख में लाखों लोगों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करके रोजगार के लिए अहल बनाया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क में तालीम आम करके अवाम को बाशऊर बनाकर रोजगार दिया। आज का दिन इख्तिताम नहीं बल्कि नए शऊरी सफ़र का आगाज है। ये इदारा एक विजन का तसलसल है, वो विजन जिसकी बुनियाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी कायद और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी, जिनका यकीन था कि इल्म और रोशनी है जो अगर आम इंसान तक पहुंच जाए तो माशरे की तकदीर बदल देती है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत तालीम के फ़रोग़ के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के शेखुल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद और दूसरे मुक़र्रिरीन ने अपने खिताब में कहा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के 36 ममालिक में लोगों को तालीम फराहम कर रही है। जामिया में साइंस, कंप्यूटर, बायोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों के अलावा माजूर अफराद, ख्वाजा सरा और जेल में मौजूद कैदियों को मुफ्त तालीम फराहम की जा रही है। इससे कबल वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने जामिया से फारिग तहसील होने वाले तलबा और तालिबात में असनाद तकसीम की। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। उर्दू और पंजाबी के मुमताज़ शायर, नगमा निगार और सहाफ़ी तुफ़ैल होशियारपुरी को हमसे बिछड़े 32 बरस बीत गए, मगर वो अपनी खूबसूरत शायरी और गीतों की सूरत में आज भी जिंदा हैं। तुफ़ैल होशियारपुरी की अदबी खिदमात का अहाता कर रही हैं लाहौर से वरदा सलीम अपनी इस रिपोर्ट में। तेरी उल्फत में सनम दिल ने बहुत दर्द सहे और हम शायरी में रोमानवी अंदाज, गजल में लतीफ जज्बात का एहसास और नगमों में वतन से मोहब्बत तुफ़ैल होशियारपुरी की शायरी के नुमाया औसाफ हैं। तुफ़ैल होशियारपुरी 17 जुलाई 1914 को मशरकी पंजाब के इलाके होशियारपुर में पैदा हुए। तालीम मुकम्मल करने के बाद स्कूल टीचर बने, तहाँ तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन होने के बाइस उन्हें मुलाजमत से हाथ धोना पड़ा। वो तहरीक आज़ादी के इज्तिमात में अपने कलाम से मुसलमान हिंद के जज्बात की अक्कासी करते। इस दौरान तुफ़ैल होशियारपुरी गीत नगारी की तरफ माइल हुए और क़याम पाकिस्तान से पहले लाहौर में बनने वाली फिल्मों के लिए गीत लिखे। पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहली फिल्म तेरी याद के गीत लिखने का एजाज भी उन्हीं के पास है। फिल्म दूल्हा भट्टी के गानों ने उनको शोहरत के बामे अरूज तक पहुँचाया। चिट्ठी मेरे तो वे कबूतरा। फिल्म चंगेज खान के लिए उनका तराना आज भी ज़बान ज़दे आम है।
तो फैल होशियारपुरी की शेरी मजमुओं में जामे महताब, मेरे महबूब वतन, शोला जाम, तजदीद शिकवा और दीगर शामिल हैं। उनका नाते कलाम भी मशहूर हुआ। ज़बां पे हरदम है जिक्र तेरा, लबों पे हरदम है नाम तेरा। वो लाहौर के 2 सालों महफिल और साफ गो के मुदीर भी रहे। तो फैल होशियारपुरी की अदबी खिदमात के तरफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, खेल में खुशामदीद, मैं हूं समी इकबाल। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत न भेजने का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेशी बोर्ड की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक BCB के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हंगामी इजलास में भारत और श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप की डेवलपमेंट से मुताल्लिक जायजा लिया गया। इजलास में सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया और फैसला किया गया कि बांग्लादेश की कौमी टीम भारत नहीं जाएगी। बोर्ड के मुताबिक इस फैसले से ICC को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है और बांग्लादेश बोर्ड मुंतज़िर है। ICC सूरत हाल को समझते हुए जल्द इस मामले पर जवाब देगा। बांग्लादेश के मुशीर बराए खेल ने ऐलान किया है कि यह फैसला भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जारहाना और फ़िरका वाराना पॉलिसियों के तनाजुर में किया गया है। भारतीय इंतहा पसंदों के दबाव में आकर IPL से फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किया गया, जिसके बाद भारत और बांग्लादेशी बोर्ड में कशीदगी बढ़ी। कराची के साहिल पर सेहत और अमन का पैगाम लिए BYD कराची मैराथन का शानदार इनेकाद हुआ, जहां मुल्क और बैरून मुल्क से आए हजारों रनर्स ने शिरकत की। मैराथन में कौमी एथलीट असरार खदट ने फुल मैराथन का टाइटल अपने नाम कर लिया। तफसील जानिए ज़ीशान अहमद खान से। कराची के सीव्यू पर होने वाली BYD कराची मैराथन का आगाज निशान पाकिस्तान से हुआ। रेस में खवातीन, बच्चों और प्रोफेशनल एथलीट्स समेत 4,500 से ज्यादा रनर्स ने हिस्सा लिया। शुरा सीव्यू से गोल्फ क्लब तक दौड़े और वापस निशान पाकिस्तान पहुंचे। हाफ मैराथन के रनर्स ने 1 जबकि 42.2 किलोमीटर की फुल मैराथन के शुरा ने 2 चक्कर मुकम्मल किए। इवेंट में फुल और हाफ मैराथन के साथ साथ 5 किलोमीटर फन रन और 10 किलोमीटर रिले रेस भी शामिल थी। आलमी मियार की इस मैराथन में फुल मैराथन जीतने का एजाज कौमी एथलीट असरार खटक ने हासिल किया। उन्होंने 42.1 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 39 मिनट और 58 सेकंड्स में तय किया। फुल मैराथन में हमास मिनहास ने 2 घंटे 48 मिनट और 59 सेकंड्स के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। इवेंट का हिस्सा बनने पर शुरा ने इसे खेलों की सरगर्मियों के फरोग में अहम संग मील करार दिया। कराची हाफ मैराथन मोहम्मद अख्तर ने 1 घंटा 19 मिनट 29 सेकंड में जीत ली। अताउल समद दूसरे जबकि फैजान फैजी तीसरे नंबर पर रहे। वुमेन्स फुल मैराथन में सारा लोधी ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा दिखाते हुए 3 घंटे 33 मिनट 28 सेकंड्स में कामयाबी हासिल की, जबकि एलिसा डाइस दूसरे नंबर पर रही। वुमेन्स हाफ मैराथन कौकब सरवर ने जीत ली। राबिया नम दूसरी और जोहा पूनावाला तीसरे नंबर पर रही। कराची मैराथन में 1000 से ज्यादा खवातीन रनर्स ने शिरकत की, जबकि 25 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 30 गैर मुल्की रनर्स भी इस इवेंट का हिस्सा बने। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। लाहौर में सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से न्यू ईयर मैराथन रेस का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन, नौजवानों और उम्र रसीदा अफराद ने भरपूर तादाद में शिरकत की। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं मुअज़्ज़मुद्दीन। भाग मेरे लाहौर सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर के ज़ेरे तमाम नए साल की मुनासबत से 5, 10 और 20 किलोमीटर की कैटेगरी की मैराथन रेस का इनेकाद किया गया। रेस में खवातीन, नौजवान और उम्र रसीदा अफराद की बड़ी तादाद शरीक हुई। रेस का मकसद लाहौर के शहरियों को एक सेहतमंदाना तफरीह फराहम करना था। हम सबको ऐसी सेहतमंदाना सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मायूसी को खत्म करो, भागो, हमारे साथ मिलके भागो, गवर्नमेंट के साथ मिलके भागो, इदारों के साथ मिलके भागो। हम इसको इतना खूबसूरत मुल्क बना सकते हैं कि मैं कहता हूँ कि आपको बैठे हो किसी दूसरे मुल्क की मिसाल नहीं देनी पड़ेगी। आज के मशीनी दौर में इंसान जिस्मानी मुशक्कत और वर्जिश से दूर होता जा रहा है। मैराथन से सबको ये पैगाम जाता है कि सेहतमंदाना जिंदगी ही भरपूर जिंदगी है। मैराथन में खवातीन की 5 किलोमीटर की दौड़ में पहली पोजीशन मैरुन्निसा और 10 किलोमीटर की दौड़ में पहली पोजीशन फातिमा ताहिर के नाम रही, जबकि मर्दों की 10 किलोमीटर रेस मलिक अहमद और 20 किलोमीटर की रेस मोहम्मद दानियल इरफान ने जीती। सीटीओ लाहौर ने रेस जीतने वाले पोजीशन होल्डर में इनामात भी तकसीम किए। मुअज़्ज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। एशेज सीरीज के 5वें टेस्ट मैच के पहले रोज इंग्लैंड ने 3 विकेटों पर 211 रन स्कोर कर लिए।
بارش کے باعث صرف 45 اوورز کا کھیل ممکن ہو سکا۔ سڈنی میں کھیلے جا رہے میچ میں انگلینڈ نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ زیک کرالی اور بین ڈکٹ نے اننگز کا آغاز کیا تو ڈکٹ 27 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ کرالی 16 اور جیکب بیتھل 10 رنز بنا سکے۔ جو روٹ اور ہیری بروک نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے سکور کو آگے بڑھایا۔ انگلش ٹیم نے 45 اوورز میں 3 وکٹوں پر 211 رنز بنائے تھے کہ بارش کے باعث kھیل روک دیا گیا، جس کے بعد کھیل ممکن نہیں ہو سکا۔ پہلے روز کھیل کے اختتام پر جو روٹ 72 اور ہیری بروک 78 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ تھے۔ 5 میچز کی سیریز میں آسٹریلیا کو 3-1 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ ایشز سیریز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھائی جا رہی ہے۔ Guided away, has it gone fine enough? It has, it's raced away for 4. This outfield just getting a bit quicker as well. بگ بیش کرکٹ لیگ میں میلبرن رینیگیڈز نے میلبرن سٹارز کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا گیا۔ میلبرن میں کھیلے گئے میچ میں سٹارز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 173 رن سکور کیے۔ ٹام کرن 38 اور کیمل کیلوے 33 رنز کے ساتھ نمایاں بیٹر رہے۔ ہلٹن کارٹرائٹ 28 اور سیم ہارپر 20 رنز بنا سکے۔ میلبرن رینیگیڈز کی جانب سے گوریندر ساندھو نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ کالم سٹیو نے 2 وکٹیں اپنے نام کیں۔ میلبرن رینیگیڈز نے 174 رنز کا ہدف آخری اوور میں 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ اوپنر جارج براؤن نے 48 گیندوں پر 84 رنز کی اننگز کھیلی، جس میں 4 چھکے اور 9 چوکے شامل تھے۔ محمد رضوان نے 41 رن سکور کیے۔ سٹارز کی جانب سے حارث رؤف اور پیٹر سڈل نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ جارج براؤن میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ ناظرین، کون بنے گا انٹرنیشنل لیگ T20 کا چیمپئن؟ فائنل میں ڈیزرٹ وائپرز نے MI ایمریٹس کو 183 رنز کا ہدف دیا ہے۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ دبئی میں جاری فائنل میچ میں MI ایمریٹس نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ ڈیزرٹ وائپرز نے 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 142 رنز بنائے۔ اوپنر فخر زمان 15 گیندوں پر 20 رنز بنا کر پیویلین لوٹ گئے۔ جیسن رائے 11 رنز بنا سکے۔ دونوں کو فضل حق فاروقی نے آؤٹ کیا۔ تیسری وکٹ کی شراکت میں میکس ہولڈن اور کپتان سیم کرن نے 89 رن سکور کیے۔ میکس ہولڈن 41 رنز بنا کر عرب گل کی گیند پر کیچ آؤٹ ہوئے۔ کپتان سیم کرن نے 51 گیندوں پر 74 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی، جس میں 2 چھکے اور 8 چوکے شامل تھے۔ On the leg side, another Weewood delivery, that's punish. Punched. Into the pitch. Over the top of mid-wicket's head and down to the boundary for 4. In the piece. In the air, and that'll sneak away for 4. Quality, high quality indeed. 1 bounce for 4. Straight down the ground for 6. Crunched for 4. It's beautifully timed. There is the innovation. Doesn't find the gap, he only finds the fielder, so platform. محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان میں 5 روزہ سپورٹس گالا اختتام پذیر۔ سپورٹس میلے میں یونیورسٹی کے تمام ڈپارٹمنٹس کے طلباء اور طالبات نے اپنے صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ تفصیل جانیے ظفر اللہ خان کی اس رپورٹ میں۔ محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر کے سپورٹ گراؤنڈ میں منعقد ہونے والی تقریب کا افتتاح وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر آصف علی نے کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر سپورٹس اور دیگر شعبہ جات کے پروفیسرز بھی موجود تھے۔ وائس چانسلر نے طلباء کو سپورٹس کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کیا۔ سپورٹس طلباء میں نظم و ضبط، ٹیم ورک اور مثبت سوچ کو فروغ دیتی ہے۔ سپورٹس گالا کے دوران کرکٹ، فٹ بال، بیڈمنٹن، والی بال اور رسا کشی، ٹیبل ٹینس اور کبڈی کے دلچسپ مقابلہ جات منعقد کیے گئے، جن میں کھلاڑیوں نے اپنی بہترین صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔
ہم یہاں پہ بہت انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ نا ایسی اسپورٹس کی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے تاکہ بچوں کو نا پڑھائی کے علاوہ بھی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. آج بہت مزہ آ رہا ہے ہماری یونیورسٹی میں. یہاں پر کبڈی ہو رہی ہے, کرکٹ ہو رہی ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے. اسپورٹس گالا میں طلبہ نے ہینڈی کرافٹس اور کھانے پینے کی اشیاء کے سٹالز لگائے ہوئے تھے. اسپورٹس گالا کے اختتام پر کامیاب کھلاڑیوں اور ٹیم میں انعامات اور ٹرافیاں تقسیم کی گئیں. شرکا نے اس ایونٹ کو یادگار اور کامیاب قرار دیا. ظفر اللہ خان, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, ملتان. مالی نے افریقہ کپ آف نیشنز کے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. کاسا بلانکا میں کھیلے گئے پری کوارٹر فائنل میں مالی نے تیونس کو اعصاب شکن پینالٹی شوٹ آؤٹ میں 3-2 سے ہرا کر لاسٹ 8 کے لیے کوالیفائی کیا. مقررہ وقت تک مقابلہ 1-1 گول سے برابر رہا جس کے بعد فیصلہ پینالٹیز پر ہوا. ایل بلال تورے نے فیصلہ کن پینالٹی سکور کر کے مالی کو فتح سے ہمکنار کیا. کوارٹر فائنل میں مالی کا مقابلہ دفاعی چیمپئن سینیگال سے ہوگا. اور ہسپانوی فٹ بال لیگ لا لیگا میں بارسلونا نے اسپانیول کو مات دے دی. کارنیلا میں کھیلے گئے میچ میں بارسلونا نے اسپانیول کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 2 گول سے زیر کیا. کھیل کا پہلا ہاف بغیر کسی گول کے گزرا. 86ویں منٹ میں دانی اولمو نے گول کر کے بارسلونا کو برتری دلائی. کھیل کے اختتامی لمحات میں رابرٹ لیونڈوسکی نے دوسرا گول کر کے بارسلونا کی جیت پر مہر ثابت کر دی. پوائنٹس ٹیبل پر بارسلونا 49 پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پوزیشن پر ہے. اطالوی فٹ بال لیگ سیری اے میں ایٹلانٹا نے روما کو ہرا دیا. برگامو میں کھیلے گئے میچ میں ایٹلانٹا نے 1 گول سے کامیابی سمیٹی. میچ کا واحد اور فیصلہ کن گول جارجیو اسکلیوینی نے کھیل کے 12ویں منٹ میں کیا. پوائنٹس ٹیبل پر روما 33 پوائنٹس کے ساتھ 5ویں اور ایٹلانٹا 25 پوائنٹس کے ساتھ 8ویں نمبر پر ہے. میلان 38 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے. Scalvini's there, Scalvini puts on the pressure and Atalanta leads. What a story for Giorgio Scalvini, who's taking the credit and for Gasperini, but not a great result. Final score here, Atalanta 1. کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا. کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.